Hello students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in previous video we started our workbook. Okay, in workbook we started unit number 4. Okay, and in unit number 4 we completed page number 20 and page number 21. Okay, and also completed 6 questions. So dear students, in today's video we are going to discuss the remaining question answers on page number 22 to 24. Okay, now on page number 22, open your book and see on page number 22. Question number 7, solve the puzzle and fill up the blanks. Okay, the puzzle and the fill in the blanks, they both are depend on each other. देखो यहाँ पर जो puzzle दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके ऊपर ये मतलब एक दूसरे के ऊपर वो है। यहाँ पर ए नंबर जो आंसर आएगा, यहाँ पर भी ए नंबर वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स रीड करता हूँ। फर्स्ट, द फार्मर वर्किंग हिज फील्ड, तो वो कहाँ पर काम कर रहा है? उसके फील्ड में काम कर रहा है, उसके खेत में काम कर रहा है। देन FIELD, फील्ड, द फार्मर वर्क्स इन हिज फील्ड, FIELD, फील्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट बी नंबर, the thick black dash and storm bring rain. The thick black clouds and storm bring rain. Clouds. The second number, which things storm bring big rain? कौन कौन से मतलब कौन रेन लेकर आता है? तो क्लाउड्स क्या करते हैं? हमें रेन लेकर आते हैं। तो ये सेकंड नंबर, बी नंबर क्लाउड्स, बी नंबर CLOUD क्लाउड। आई जस्ट रिटन हियर S, so CLOUD क्लाउड, CLOUD क्लाउड, तो दोनों तरफ क्लाउड एंड क्लाउड वो आना चाहिए। देन सी नंबर, देयर वाज अ लाइटनिंग एंड थंडर बिफोर द रेन। देयर वाज लाइटनिंग एंड थंडर, विच जो कहते हैं हम, जो लाइट चमकना और उसके साथ जो आवाज आता है वो थंडर यहाँ पर आना चाहिए सी और डी में। तो सी और डी जो है यहाँ पर लाइटनिंग, LIGHT, NING लाइटनिंग, और उसके ही सामने थंडर, जो सी नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स है THUNDER, थंडर। ओके, नाउ डी नंबर fill in the blanks, and E number puzzle. Here my granny has D number, dash is precious, we must not it, मतलब water जो है WATER, water is very precious, we must not waste it। जो water है हमारे लिए बहुत precious है, जो important है, valuable है, तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। WATER वाटर। रिमेंबर यहाँ पर सी में जो दो फिल इन द ब्लैंक्स थी उस वजह से सी और डी आया है, तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर ई नंबर में आएगा। रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट ई नंबर। अब ई नंबर का आंसर एफ में आना चाहिए। तो माई ग्रैनी हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन, GARDEN, गार्डन। हियर यू कैन राइट गार्डन, GARDEN, garden. And last one, the pond in our village dries up in summer. The pond in our village dries up in summer. Here POND, pond. Okay, समझ में आया? You can also see the pictures on page number 22. The field is there, water is there, garden is there, pond is there, storm and lightning or cloud are also there. Okay, यहाँ पर first number जो picture है, I am going to show the picture here. Dear students, in first number picture you can see the field, the farmer is working in the field. Then next you can see the clouds, here you can see the clouds. Then there was lightning, here lightning, बीज जो होती है, बिजली चमकना देख सकते हैं, उसके साथ साथ आवाज भी आती है, वो थंडर। Then water, from the tap you can see the water drop. Okay, E number, my granny has a beautiful garden. You can see in this picture
the garden is there, and last one is here garden is there, and last one is pond. You can see in this picture pond is there. Okay, the fill in the blanks and the puzzle over. Okay, now turn the page and see on page number 23. Here using the word box fill in the blanks to complete the story. Here you can see the story is there about the fox and crow. Actually we heard this story various time. ये story जो हम the fox and crow की हमने बहुत बार सुनी हुई है. तो आपको क्या करना है, वर्ड बॉक्स जो है नीचे जो वर्ड बॉक्स दिया हुआ है, here you can see the word box. The words are given: ugly, began, happy, order, sad, clever, beautiful, beautiful, meet, wanted, ran, got, and song. These are 12 word in given in word box. तो आपको वो इस स्टोरी में जो fill in the blanks दिए उसको भरना है और ये स्टोरी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है. Here once there lived a proud crow named Blackie. One day he got a piece of meat and sat on branch of tree. तो हमें यहाँ पर सोचना चाहिए कि कौन सा वर्ड वहां पर यूज होना चाहिए. एक दिन उसे क्या मिला, मिलने के लिए हम got. Okay, and a piece of meat and sat on a branch of tree. और वो कहां पर जाकर बैठ गया, sat on a branch of tree. Then next, hungry fox named Willie being clever went closer to Blackie. Okay, उसके बाद जो है एक फॉक्स है वो क्लेवर था विली नाम का, तो यहाँ पर क्लेवर यूज किया जाएगा. went closer to Blackie and played a tree. तो उसे वो मीट का टुकड़ा है वो उसे चाहिए था. he said that Blackie was most beautiful of all birds. तो वो उसे क्या दिखाता है, लालच दिखाता है और बोलता है कि तुम सबसे अच्छे और ब्यूटीफुल बर्ड हो. सभी जो बर्ड्स है उसमें से सबसे सुंदर बर्ड कौन सा है, तो तुम हो, तुम क्रो, तुम ही सबसे सुंदर हो. नेक्स्ट, ही केम टू हियर हिज मेलोडियस सॉन्ग. और उसे वो बताता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तुम इतने सुंदर हो तो इसलिए मैं तुम्हारा जो गाना है, तुम अच्छा गाना गाते हो, तो वो गाना सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. ब्लैकी वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन टू हिज प्रेजेस. और ब्लैकी जो है क्रो, वो बहुत खुश हो गया कि वो कोई तो मेरी प्रेज कर रहा है, कोई मेरी स्तुति कर रहा है, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है, तो वो बहुत खुश हो गया. और जैसे उसने क्या किया, वो ब्लैकी जो है वो सॉन्ग स्टार्ट करता है, गाना शुरुआत करता है. विली को गाना सुनना है तो वो गाना स्टार्ट करता है. और जैसे ही वो सॉन्ग स्टार्ट करता है, as soon as he began to sing, the piece of meat fell on the ground. अगर उसके मुंह में और उसकी जो बीक है, उसकी जो चोंच है, उसके अंदर अगर मीट का टुकड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा, गाने के वक्त अगर आप मुंह खोलते हो और आपके मुंह के अंदर और दांत के अंदर कुछ पकड़ा हुआ है आपने, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. तो उसी तरह कौवे के चोंच के अंदर जो मीट का टुकड़ा था वो भी क्या हो गया, फेल ऑन द ग्राउंड. विली रैन टू ईट इट. और जो विली था, फॉक्स था, उसने क्या किया, जल्दी से उसे पकड़ा और भाग गया. आफ्टर ईटिंग ही ऑर्डर्ड ब्लैकी टू स्टॉप काविंग. और वो सब खाने के बाद उसने ब्लैकी को, मतलब क्रो को क्या किया, ऑर्डर्ड किया, चुप हो जाओ, तुम्हारा ये काव अब बंद कर दो. विली एक्सप्रेसेस हिज डिसलाइक फॉर ब्लैकीज वॉइस एंड अगली कलर. ओके, लास्ट वन इज अगली कलर. ब्लैकी वॉज शॉक्ड एंड सैड. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो एक होशियार जो फॉक्स है और जो क्या कह सकते हैं, मूर्ख कौवा, उसकी, उन दोनों के बीच की स्टोरी है. ओके, तो वो लास्ट में क्या कहता है, फॉक्स, तुम्हारा वॉइस भी खराब है और तुम दिखने में भी अगली हो. सो दिस इज द स्टोरी. 9 number question, answer the following questions. Okay, here there are 6 questions. First number is, where is it raining? In the rain poem, where is it raining? The rain, it's raining all around, on field and trees, on the field, then on the ships at sea. Okay, here we can see, we already discussed, the rain is raining all around. All around means where? On the field, on the trees, on the ships, at
सी। ओके, मतलब हमने देखा था कि बारिश कहाँ पर गिर रही है, शीप्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, फील्ड में। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्नेल, स्नेल का नाम क्या है, सुनु सुनु, वी नो दैट। देन नेक्स्ट, वेयर डिड द एंट्स क्लाइंब, वो एंट जो है वो कहाँ पर चढ़ी थी, द एंट्स क्लाइंब ऑल ओवर सुनु सुनु, सुनु सुनु के ऊपर वो चढ़ी हुई थी, उसके बैक के ऊपर। देन नेक्स्ट, डी व्हाई डिड सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर्स, उसने जो अपने फिलर्स है, एंटीना जो है वो क्यों बाहर निकाले थे, बिकॉज ही वॉज लुकिंग दैट वेयर वेयर द एंट, जब उसने एंटीना और वो छुप गई थी सेल के अंदर, तो उसने बाद में फिलर्स क्यों बाहर निकाले, एंटीना क्यों बाहर निकाले, तो वो देखना चाहती थी कि एंट्स जो है, उसके जो फ्रेंड्स है वो कहाँ चले गए, वो कहाँ पर है, तो वो देखने के लिए उसने क्या निकाले थे, उसके जो फिलर्स है वो बाहर निकाले थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द एंट्स टेल सुनु सुनु एंड वेयर डिड ही गो, और एंट्स ने उसे क्या कहा सुनु सुनु को, और वो बाद में कहाँ चला गया, तो सुनु द एंट सेड टू सुनु सुनु टू गो होम, उसे घर जाने के लिए कहा था उन्होंने, और वो कहाँ गया था, अंडर अ स्टोन नियर द वेल, उसका घर था वहां पर, उसकी माँ वहां पर थी, वहां पर वो गया। नेक्स्ट, वेयर वाज सुनु सुनु's मदर एंड व्हाट डिड ही टेल हर, सुनु सुनु की मदर कहाँ पर थी और उसने उसकी माँ को क्या बताया, अंडर अ स्टोन नियर द वेल, उसकी माँ कहाँ पर थी, अंडर अ स्टोन, एक पत्थर के नीचे, जो पत्थर कहाँ था, एक जो वेल है उसके पास वो थी। देन नेक्स्ट, ही टोल्ड हर, उसने उसकी माँ को क्या कहा, देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन, और उसने उसकी माँ को बताया कि गार्डन में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, और उस स्टॉर्म के बाद क्या क्या आया, हवा कैसी चली, ब्लो, उसके बाद ट्रीज के पत्तों ने कैसे आवाज किया, लाइटनिंग का आवाज कैसे हुआ था, उसके बाद थंडर का आवाज कैसे हुआ, रेन का आवाज कैसे हुआ, ये सब जो कहानी है उसने उसकी माँ को बताई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड द क्वेश्चंस we discuss now 6 questions, yes, hope so you understood. So dear students, today we just finished the lesson or the unit 4, work from the unit number 4, rain and storm in the garden, workbook unit number 4 we just finished. Okay, hope so you understood whatever we discussed in previous video and this video also. अगर कुछ डिफिकल्टी है, if you don't understand anything then you can ask me, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। Okay, so dear student, today we stop here. Thank you very much.